So in this video I'm going to solve first 10 numericals of this NEET 2021 paper. Okay, so let's begin with this numerical. Now basically there is a conductor carrying current of 5 ampere, and there is an electron moving with a speed of 10 raised to 5 meter per second at a distance 20 centimeter from the current carrying conductor. So we need to find out the force acting on this electron. ठीक है. So now force acting on any charged particle when it is moving in the presence of magnetic field is given by this formula. Charge is given, velocity is given, so we need to calculate the value of magnetic field. So in case of a conductor, this is the expression for current produced by current carrying conductor. So I just need to put this value in this formula and I'll get the force acting on force experienced by this electron. ठीक है. तो B की जगह उसका फॉर्मूले में फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. ठीक है. And Q into V. So Q is not given. Okay, the value of Q, you should be aware of that, 1.6 into 10 raised to minus 9 coulomb. So all you need to do is put the value in the formula. Mu की वैल्यू कितनी होती है? 10 raised to minus 7. आप इसको 2 यहाँ से इसको म्यू अपॉन 4 पाई भी एडजस्ट कर सकते थे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके. आई मीन इन दिस वे. Okay, this is the expression. Now in that case mu upon 4 pi की वैल्यू हो जाती 10 raised to minus 7, but it's okay, no problem. So I is given 5 ampere, value of charge is 10 raised to minus 19 coulomb, and what is this velocity? Velocity is 10 raised to 5 meter per second divided by 2 pi is there in the denominator. Yeah, okay. Now then r की वैल्यू कितनी है? ये वाली distance, that will be 0.2 meter, isn't it? So if you solve it, okay, I'm not going to go for the calculation part. If you solve it further, okay, you will get this answer. So do check the calculation. I'm not going for the calculation part, and if you find any error, do let me know in the comment box. Okay. Now let's move on to the next question. So basically this is the force acting on the charged particle moving in the presence of magnetic field. So easy था, ज़्यादा difficult भी नहीं था. चलो let's move on to the second one. Okay, check this one. This is related to the frequency of kinetic energy and potential energy in case of simple harmonic motion. So check this one. Body is executing simple harmonic motion with the frequency n. Let's take an example of simple pendulum. ठीक है. This is not an example of simple harmonic motion. Anyway, no problem. Oscillating spring, चलो कोई बात नहीं. Oscillation है, चलो कोई बात नहीं. Check this one. The frequency of its potential energy. So potential energy changes twice per oscillation. So correct answer here will be 2n. This is related to radioactivity. This is very simple one. तो हमें पता है जब बेटा एमिट होता है तो प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे 1 से डिक्रीज़ होता है. ठीक है. अल्फ़ा एमिट होता है तो क्या होता है? हमें पता है कि Z2 से डिक्रीज़ होता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज़ होता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. इजी था, ज़्यादा था नहीं डिफ़िकल्ट. देखो एटॉमिक नंबर इज़ डिक्रीजिंग बाय 1, सो ऑब्वियसली beta plus is emitting, positron is emitted by the nucleus, and here as you can see the atomic number is decreasing by 2.
ठीक है। सो ऑलरेडी -1 है, -2 तो -3 कब होगा? जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा। ठीक है, तो फर्दर अगर हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखो ना यहाँ पे मास नंबर मेंशन नहीं किया, नो प्रॉब्लम। अगर बेटा पार्टिकल एमिट होता है तो ये 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना। बेटा अल्फ़ा एंड सॉरी पॉजिट्रॉन अल्फ़ा एंड बेटा पार्टिकल इज़ गेटिंग एमिटेड हियर। ठीक है, इजी था, यू कैन चेक इट बाय योर ओन, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव ऑन। well, check this one, fourth one. This is related to escape velocity. तो escape velocity का जो फार्मूला होता है, सो तो escape velocity का फार्मूला होता है 2gm/r. okay, now check this one. Escape velocity from the earth's surface is v. Escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times the radius of earth and same mass density. So in this formula we need to introduce density as well. So density का formula क्या होता है? mass upon volume. earth is spherical, so sphere का volume का formula. इसका मतलब मुझे mass को replace करना होगा। ठीक है, तो mass को replace कर देते हैं फिर। ठीक है, तो mass को अगर हम replace करेंगे इस formula में 2g rho 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाय r, तो हमें पता है कि एक r कट जाएगा और इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये r स्क्वायर है ना, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो है ना, इसका मतलब है कि मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन है सॉरी एस्केप वेलोसिटी का, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड under root of mass density. So density is same on both the planets. It means we need to compare radius. So जो जिस planet पे हमें escape velocity find out करना है, उसका जो radius है 4 times radius of the earth, तो escape velocity भी 4 times escape velocity on the earth हो जाएगा। तो solve ना भी करे तो भी चलेगा, हमें पता चल जाएगा कि ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 4 टाइम रेडियस है तो ऑब्वियसली escape velocity on that planet will be 4 times that on earth. Now let's move on. This one is something ये भी easy है, ज़्यादा कुछ है नहीं. It is related to radioactive disintegration. ठीक है, basically हमें ये वाला formula use करना रहता है when we talk about the number of nuclei. Undecayed part है, this is undecayed part, n. अच्छा, so ये n क्या होता है? Basically it's nothing but मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। ऑलराइट, चेक दिस वन। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स, सो टी इज गिवन। ओके, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, अच्छा एक्टिविटी है ना तो कोई बात नहीं, सिर्फ लेटर्स चेंज हो जाएंगे, फार्मूला तो वही रहेगा। दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। तो देखो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो टाइम इज़ गिवन आफ्टर 150 आवर्स, n की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस विल बी 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 0 कैंसिल। सो लेट्स पुट इट इन दिस फार्मूला 1/2 3/2। सो 1/2 मीन्स अंडर रूट जाएगा cube, that will be under root 1/8, that is going to be 1/2 under root 2. So it means second option is correct here. ठीक है, तो बेसिकली ये फार्मूला आपको अंडरस्टैंड करना है। दिस रेशियो इज़ फॉर अनडिकेड पार्ट, ओके, आई मीन द फ्रैक्शन विच इज़ रिमेंड। ओके, जो डिकेड पार्ट है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है बेसिकली विद इन द न्यूक्लियस। वेल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ओके, चेक दिस वन। अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एंड अ कॉन्केव लेंस, ये ए हो गया कॉन्वेक्स,
और एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, सॉरी, बी। 5 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ, 5 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। केप्ट अलॉन्ग अ सेम एक्सिस एट अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये डी है। इफ़ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एट अ पैरेलल बीम देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर विल बी। अच्छा, इस पर पैरेलल रेज फॉल हो रही है, ठीक है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। पैरेलल रेज आर फॉलिंग ऑन दिस लेंस, ठीक है, दे विल कम टू फोकस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब दे विल फॉल ऑन दिस लेंस, अब देखो इसको कन्वर्ज होना था यहाँ पे, ठीक है, बट इट विल गो पैरेलल, इजंट इट? ओके, अब देखो यहाँ पे हमें पूछा क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लेंस एंड द सेकेंड लेंस। तो अब देखो यहाँ पे फोकस बन रहा है ना इस ये जो रेस का, बट दे विल नॉट फॉर्म ईयर, दे विल गो पैरेलल, ठीक है। नाउ इट इज़ मैंशनड ईयर लीव्स बी एज पैरेलल बीम। तो अब इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ कितना होता है, ये इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है उसका, 5, दैट विल बी माइनस, क्योंकि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो टोटल में से इतना अगर हम हटा देते तो कितना मिलेगा हमें, 15 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है, समझा ना। 20 में से -5 दोनों का ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये जो डिफरेंस है बेसिकली दिस विल बी 15 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर, ठीक है, ओके। ऑल्दो देयर इज़ पर्टिकुलर फार्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये वाला जो फार्मूला है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, फोकल लेंथ आर गिवन इफ़ यू, एंड ये जो कंबाइन फोकल लेंथ है इन दोनों का जो एडिशन होगा फोकल लेंथ का, ठीक है। तो all the values are given, if you put this all these values in this formula you are going to get 15 centimeter, but no need to do that actually, otherwise अगर इसको पावर में भी हम कन्वर्ट करते तो P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, सो जो फाइनल पावर है वो तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि रेज आर गोइंग पैरेलल, ठीक है। सो बचा क्या फिर, P1 हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, P2 हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, and then we can get the D. But it's okay, using this diagram you can, if you can understand this diagram you can get the answer. Now let's move on. अच्छा, ये वाला देखते हैं, सेवन्थ वाला क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करंट क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। दिस इज़ द केस ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर के केस में हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो मेरा जो करंट हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट करंट है बेसिकली, नॉट द कंडक्शन करंट। दे बोथ आर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है ऑल्दो, ठीक है। इन केस ऑफ कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो सी तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो फिर बचा क्या, फिर डी वी बाई डी टी, ठीक है। अगर ये फार्मूले में मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ, वेलोसिटी कित सॉरी वोल्टेज कितना है, ओ डियर लॉर्ड जस्ट अ सेकेंड, साइन ओमेगा टी, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते, ठीक है, तो V0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डेरिवेट करके देख लेना, डिफ्रेंशिएशन करके देख लेना, ठीक है, आपको यही आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा एक और एक्सप्रेशन है,
वी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे तो आर की जब बात होती है तो एक्स सी की बात होती है बेसिकली। इवन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक्स सी क्या होता है बेसिकली 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। तो ये देखो ना, यहाँ पे अगर हम 1/ओमेगा सी रखते हैं वो सीधा ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ओमेगा सी बाई ओमेगा सी इंटू वी। अब वी का एक्सप्रेशन क्या है, देखो वी के लिए एक्सप्रेशन क्या दिया है, ओमेगा सी वी नॉट साइन। अब हमें पता है इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, देयर इज़ अ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितने का आता है, पाई/2 का आता है। करंट लीड करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो ये पाई/2 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इट्स नथिंग बट द ओमेगा सी वी ज़ीरो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो आपको यही एक्सप्रेशन वापस से मिल जाएगा, बट नो नीड टू डू दैट, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सीधा डिफ्रेंशिएशन लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। ओके, चेक दिस वन नाउ, एक सेकेंड। वेल चेक दिस वन, ये तो इस फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड 2n-1, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये फैक्टर ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल n-1 एंड सॉरी t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इनिशियल ये ले लेते, सेकेंड क्या हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुटअप करते, n की जगह n-1 हो जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करते 2n प्लस 2-1, तो ये हो जाएगा a/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस प्लस। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते, ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का रेशियो लेते, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। नाउ पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, ठीक है, 10th वाला। तो बेसिकली हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, L2/L1। देखो ना, पोटेंशियोमीटर सर्किट सेल EMF of 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ 36 किलोमीटर। किलोमीटर, डिड आई से किलोमीटर? even L1 is given 36 centimeter. Another cell E2 is given. Replace the first cell, then what is the length of the wire? So we need to calculate the E2. No, sorry, we need to calculate L2. So 2.5, E1 कितना है 1.5, L2 L1 कितना है 36, ठीक है। सो इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट फर्स्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। डू चेक द कैलकुलेशन, चलो कर लेते। 5 जा 36 को मैं ये 6 टाइम में जाएगा। एंड डिड आई डू समथिंग रॉन्ग हियर? E2 is given 2.5, L2 we need to calculate। E1 कितना 1.5 है, L2 36, ओ या 3 1 जा 3 12 आएगा, सॉरी मैंने 6 लिख दिया वहाँ पे, सॉरी माय बैड, ये 12 हो जाएगा ना। एंड 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चेक कैलकुलेशन चेक कर लेना, बेसिकली ये सिंपल सा फार्मूला हमने यूज़ करना है। ना लेट्स मूव ऑन टू द 9th वन। अच्छा 9th वन रह गया था, देखो क्या बोला है 9th वन में। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सरफेस है, एट अ हाइट s हमने एक पार्टिकल को रिलीज़ किया, ठीक है, ये पूरी s है। अच्छा, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो सपोज ये वाली हाइट हो गई, यहाँ पे जो क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, mgh हो जाएगा इधर, ठीक है। अब फर्दर द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड भी निकालनी है हमें और ये हाइट भी निकालनी है। सो व्हेन द पार्टिकल वाज हियर इनिशियली इट वाज हैविंग ओनली पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बनेगा एम जी एस, ठीक है, एम जी एस एट द टॉप। ना एट दिस पोजिशन इट इज़ हैविंग बोथ द एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है काइनेटिक एनर्जी कितना बन रहा है, 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी। सो ये 4 टाइम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम एम जी एच, एम जी एस। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते फर्दर, ठीक है, ए एम जी कटा, एस विल बी 4h, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, s/4। तो s/4 तो इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में भी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या फार्मूला है, 2gh, ये फार्मूला यूज़ करते हैं ना हम। तो बेसिकली बॉडी ने यहाँ से यहाँ फॉल हुआ है, ठीक है, ये हाइट उसने लूज़ किया है, तो ये पूरा एस है। एस की वैल्यू कितनी आई है हमें, 4h आई है, राइट। या ये वाली वैल्यू कितनी आई है, ये s/4 आई है ना h की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, 3s/4, राइट, इजंट इट। ये पूरा s है, ये हमें मिली है s/4, तो इतने में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली हाइट मिल जाएगी, क्योंकि बॉडी हैज़ कवर्ड दिस हाइट ओनली। सो वी विल पुट दैट हाइट इन दिस फार्मूला, 2g 3s/4, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3gs/2। सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। एस हाइट कितना आया, s/4 आया, और काइनेटिक एनर्जी की जो, सॉरी हाँ क्या बोल रहा मैं, स्पीड की, स्पीड का ये एक्सप्रेशन है, सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड, और हमें स्पीड निकालना था, ठीक है। सो स्पीड का जो फार्मूला होता है 2gh, alright, so h is the height, I mean this distance covered by the object, so that is going to be 3s/4, ठीक है। अगर आपने s में से इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये वाला हाइट मिल जाएगा, and if you put it in this formula and if you solve it further you are going to get this option here. So first 10 numericals I have solved in this recording, and remaining numericals I will solve in the next recording.